Hi dear students, welcome to business studies class. So in last video we are means we are stopped there within the seventh factor. So we are started the topic that is factors affecting the choice of capital structure. So within last video we are completed what is the capital structure. So it is capital structure means how much amount of debt you are going to use for your business, means how much amount of loan or debentures you are going to use for your business. If you are taken a debt, that is the borrowed fund. So for that you have to pay the fixed rate of interest. Okay, and how much amount of equity you are going to use for your business. So for your business you have to use the both equity as well as equity as well as debt. Okay. Because both have some advantages and limitations, so according to that factors you have to choose whichever the suitable structure for your business. Okay, so in last video we have completed the 7 factors. Already I told there are 14 factors are there, so 7 factors we are already completed. So in this video what are the left 7 factors I am going to complete in the okay. So next factor is risk consideration. Okay, risk consideration. So all of you know business means risk is there. So it is one of the characteristics of business. Okay, so risk means which kind of risk are there? So there are two kinds of risk. One is financial risk and other one is the operating risk. So what is the financial risk means what? When company unable to pay the fixed financial charges. When company is not able to fix the financial charges, it may be the interest on loan, otherwise payment of creditors, it may be anything. So that time if the company is not able to pay the interest rate, if the company is not able to the payment of creditors, otherwise operating risk means high operating cost. What is our operating cost? It is going to be increased suddenly. So if it is a risk for your business. Okay. So if the risk is increased, otherwise if the low risk is there for your business, risk is low. There means, see, obviously what is mean the risk? Risk means there is a maximum chances of losses. For your business, if the risk is low, then you can go for debt. Because risk is low means losses is less, so easily you can pay the interest rate on that debt. But if the risk is high, means there is a maximum chances of losses for your business, that time you are not able to pay the interest rate. So that's why you can choose the equity. So on equity it is not compulsion to pay the dividend in cases of loss. So it is going to feasible. Okay. So risk का मतलब क्या है? So there is a maximum chances of loss. So business में maximum chances आते हैं loss होने की, उसको हम क्या बोलते हैं? Risk. सो एक तो फाइनेंशियल रिस्क, मतलब जो भी फाइनेंशियली हमारा बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकता, मतलब जो भी हमने ऑलरेडी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट देने के लिए हमारा बिजनेस काबिल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है. सो जो भी पेमेंट रहते हैं क्रेडिटर्स ने हमें उधार बेसिस पे कुछ तो सामान दिया है, उसका पेमेंट करना हमारे बिजनेस को पॉसिबल नहीं है, यानी कि दैट इज वन ऑफ द रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क मीन्स जो भी ऑपरेशन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो रेट बढ़ गया अचानक से ड्यू टू द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस, अदरवाइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एम्प्लॉइज पेमेंट. सो इट मे बी द रीजन. सो ऑपरेटिंग रिस्क इंक्रीज हुआ मीन्स ऑपरेटिंग रेट भी चेंज हुआ तो आपको बिजनेस को रिस्क रहता है, मतलब देयर इज द मैक्सिमम चांसेस ऑफ लॉसेस. सपोज आपके बिजनेस में रिस्क कम है, सो बिजनेस में रिस्क कम है आपके बिजनेस में, तो मतलब एक काम तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि रिस्क कम है, मतलब लॉसेस होने के चांसेस कम है. सो लॉसेस होने के चांसेस कम है मतलब आपके पास पैसा है तो आप लोन ले सकते हो, यानी कि लोन लेने के बाद वो कर्जा चुकाने के काबिल आप रहते हैं. बट आपके बिजनेस में रिस्क हाई है, मतलब लोन चुकाने के लिए काबिल नहीं हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज द इक्विटी. सो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले लो, दैट इज द बेस्ट वे. रिस्क ज़्यादा है तो सो सपोज लॉस भी हुआ आपके बिजनेस में तो जो भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है. लॉस है तो नहीं दे सकते, प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड दे सकते हैं. सो नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? एक्सेस ऑफ डेट restrict further borrowing, otherwise future borrowing power, then choose the equity.
मतलब आपने बिजनेस में ऑलरेडी लोन लिए हैं, मतलब वो लोन मतलब ऑलरेडी आपने 1 करोड़ रुपीस 2 करोड़ रुपीस का आपका लोन है, उसका इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो, पर ईयर आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, फिर से आपके बिजनेस में आपको पैसे की कंडीशन आई, मीन्स यू वांट अ मनी फॉर योर बिजनेस। सो ऐसी सिचुएशन है तो आप फिर से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि द बैंक्स आल्सो आर नॉट रेडी टू गिव द लोन्स, क्योंकि तब आपका डेब्ट कवरेज सर्विस रेशियो कम हो जाएगा। सो आपका ऑलरेडी लोन है, फिर से लोन लेने के लिए गए, मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू चूज अ डेब्ट हम कब चूज करते हैं, क्योंकि इट हैव द लेसर कॉस्ट, उसका कॉस्ट कम है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट में है, तो हम डेब्ट चूज करते हैं। बट ऑलरेडी आपका लोन है तो फिर से लोन लेना है तो उसका भी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और लोन लिया है मतलब कंपल्सरीली यू हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, कैपिटल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट अ फ्लेक्सिबल। सो आपका इस मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स पे करना है, तो लॉस हुआ तो आप कैसे पे कर पाओगे। सो सम अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑल्सो यू हैव टू चूज। तो इक्विटी चूज किया तो आपने, सो वहाँ पे डिविडेंड देना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्सन। सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलरेडी डेब्ट यूज किया है तो नेक्स्ट डेब्ट इक्विटी के लिए जाओ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डेब्ट। बट द प्रोसीजर टू एंटर विद इन द शेयर मार्केट दैट इज अ लेंडिंग। सो इक्विटी चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट द शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट इट इज अ कंट्रोल। सो कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज, अदरवाइज डिसीजन विद इन द बिजनेस, दैट इज द कंट्रोल। सो डेब्ट, आपने जो भी लोन लिया है तो जो बैंक आपको लोन देती है उसके बदले में आपको उस बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो बैंक आपके कामकाज में, आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। नो कंट्रोल ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, डिबेंचर से लिया है तो भी कोई इंटरफेयर नहीं करते आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में। ओके, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर बिजनेस। आपने लोन लिया है, उसके बदले में आप लोन चुका रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, काम खत्म। बट इक्विटी, बट लोन लिया है मतलब यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में शेयर होल्डर, सो शेयर होल्डर से पैसा लिया है मतलब शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो लाइक ओनर ऑफ योर कंपनी। उनके हाथ में आपका कंपनी का डिसीजन जाता है। दे आर गोइंग टू इंटरफेयरिंग विद इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपको चलेगा, मेरे बिजनेस में दूसरा कोई डिसीजन ले रहा है तो आपको चलता है तो गो फॉर द इक्विटी। इफ द इंटरफेरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इट इज ओके फॉर यू, देन गो फॉर द इक्विटी। दूसरे लोगों का, शेयर होल्डर्स का इंटरफेयर आपके बिजनेस में आपको चलता है, क्योंकि जो आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है मतलब वो इलेक्शन लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेना है वो आपको चलता है, उनके हाथ में सभी आपके बिजनेस एक्टिविटी का डिसीजन है, शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो आपको चलता है तो गो फॉर द इक्विटी। बट आपको लगता है कि मेरे बिजनेस का डिसीजन मैं ही लूँगा, सो यू आर नॉट रेडी टू इंटरफेरेंस ऑफ अदर पर्सन विद इन योर बिजनेस, देन गो फॉर द लोन। बट लोन लिया है तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक्स और डिबेंचर्स आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। बट आपको इंटरेस्ट रेट कंपल्सरी पे करना ही करना है, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। सो इफ इट इज़ ओके फॉर यू, गो फॉर इट। बट इक्विटी में डिविडेंड देना, जब प्रॉफिट है तब देना, लॉस है तो कंपल्सरी नहीं है कि डिविडेंड देना। सो बट शेयर होल्डर्स आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करेंगे, डिसीजंस में इंटरफेयर करेंगे, वो आपको चल सकता है तो गो फॉर द इक्विटी। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज regulatory framework. So what is a framework of your business? That is a regulatory framework. So next factor is regulatory framework. So suppose if you are ready, see, when you are taken otherwise you are issuing the shares and debentures. When you are going to issue the shares and debentures, you have to follow the SEBI guidelines. What is the SEBI? Security
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गाइडलाइंस। ओके, सो अदरवाइज सेबी पॉलिसीज। सपोज आप शेयर्स इश्यूज कर रहे हो, नहीं तो डिबेंचर्स इश्यूज कर रहे हो, तो उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके एक इंस्टीट्यूशन है, सो उसका जो भी रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सेबी शेयर होल्डर के बारे में सोचती है, शेयर होल्डर के लिए काम करती है सेबी। मतलब जो भी प्रॉफिट आया उसमें से प्रॉफिट शेयर होल्डर को देने के लिए, मतलब जो भी पॉलिसीज बनाए वो सेबी ने बनाया, क्योंकि लोगों से पैसा हम बिजनेस करने के लिए लेते हैं बट उनको वापस पैसा नहीं दिया तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो इट इज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेबी। सो जो भी शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सभी डिसीजन सेबी इंस्टीट्यूशन लेती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आपको शेयर्स इश्यूज करना है और डिबेंचर्स इश्यूज करना है तो आपको कंपल्सरीली सेबी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। सो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इट इज फिजिबल फॉर यू, सो गो फॉर द इक्विटी शेयर्स, ओके, अदरवाइज गो फॉर द ओनर्स फंड। सो आपको मतलब यू आर ओके फॉर इट, सेबी का गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर शेयर्स। बट when you are taken a loan, so that time you have to follow the monetary policy of any bank, okay, you have to follow the basic monetary policy। तो आपको monetary policy अच्छा लगता है, सेबी गाइडलाइन से अच्छा monetary policy आपको लगता है, उसमें से जो भी पॉलिसीज लिखा है, रूल्स रेगुलेशन लिखा है, वो आपको फिजिबल है, तो गो फॉर लोन्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू विच इज फिजिबल फॉर यू, गो फॉर इट। द नेक्स्ट factor affecting on choice of capital structure, that is stock market। stock market का मतलब है शेयर मार्केट। so share market, it is also important factor to choose the equity or to choose the debt। means according to the stock market, according to the share market, so what are the rate of share market, so according to that also it is important you are going for the shares or you are going for issuing of shares or you are going to take a loan or debt। so if the stock market there are two conditions, so share market में दो conditions है, एक तो boom and recession or you can call the depression। boom means तेजी, so you heard the thing, शेयर मार्केट तेजी में है, मंदी में है, ओके, सो दैट इज बूम मीन्स तेजी, मीन्स गुड कंडीशन ऑफ शेयर मार्केट, बूम तेजी, एंड रिसेशन मीन्स बैड कंडीशन ऑफ शेयर मार्केट। ओके, सो इफ द गुड कंडीशन ऑफ शेयर मार्केट इट इज देयर, स्टॉक मार्केट इट इज देयर, बिजनेस फ्लरिश, मीन्स योर बिजनेस अंडर द प्रॉफिट। शेयर मार्केट का कंडीशन अच्छा है तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, फ्लरिश होगा। तो उस टाइम जो भी इन्वेस्टर्स है वो आपके बिजनेस के, वो आपकी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस, आप प्रॉफिट में हो ना, तो आप प्रॉफिट में हो तो आपका प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को भी मिलेगा। तो इसलिए उस टाइम जो भी इन्वेस्टर रहते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो तब जब वो लोग रेडी है पैसा देने के लिए उनका, तब ले लो, दैट इज द you can choose the equity at that time। जब बिजनेस कंडीशन आपकी अच्छी है, आपको क्या लगता है, बेसिकली बिजनेस कंडीशन अच्छा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर से मैं लोन क्यों ले लूँ, फिर से मैं लोगों से पैसा क्यों ले लूँ, ऐसा लगता है। बट वाई यू हैव टू टेक अ मनी इफ योर बिजनेस अंडर द बूम, क्यों लेना है, क्योंकि अच्छा कंडीशन है तो ही इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आपके बिजनेस का कंडीशन अच्छा नहीं है तो कोई भी आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। सो दैट पर्पज आपके बिजनेस का कंडीशन अच्छा है तो ही इन्वेस्टर्स रेडी हो गए, तब आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, तब आप शेयर्स इश्यूज करते जाओ, ओके, तब आप डिबेंचर्स इश्यूज करते जाओ, क्योंकि आपके बिजनेस कंडीशन अच्छा है तो ही आपके पास इन्वेस्टर आएंगे। बिजनेस कंडीशन अच्छा नहीं है तो आपके पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो बिजनेस कंडीशन अच्छा नहीं होता तभी आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, बट तब आपको कोई भी पैसा नहीं देता। जब आपके बिजनेस की कंडीशन अच्छा है तभी शेयर्स इन्वेस्टर्स आएंगे, तभी पैसा लेके रखो, दैट इज द थिंग। इफ योर बिजनेस कंडीशन अंडर द मूव
business flourish and investors and shareholders are ready to invest within your business. So take the opportunity of it. Suppose it is in recession, आपका बिजनेस मंदी में है, स्टॉक मार्केट मंदी में है, तो स्लो बिजनेस ग्रोथ, आपके बिजनेस की ग्रोथ स्लो होगी, और आपका बिजनेस मंदी में है और लॉसेस में है, तो कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता. तो आपके पास एक ही सोल्यूशन बचता है, यू शुड गो फॉर द डेब्ट. क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो आपके बिजनेस लो है, आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर द डेब्ट. क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं तो इन्वेस्टर आपको पैसा देने के लिए उस टाइम में रेडी नहीं होते. सो अकॉर्डिंग टू योर स्टॉक मार्केट कंडीशन यू हैव टू चूज इक्विटी और डेब्ट. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट आल्सो. So what is the cost of debt? Otherwise the interest of debt means whatever you are taken a loan. So what is the cost of interest? Low rate, if it is a low rate rather than the dividend से अच्छा आपका इंटरेस्ट रेट, लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो कम है, तो डेब्ट के लिए जाओ. सपोज डिविडेंड से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो इक्विटी यू कैन चूज द इक्विटी. ओके, सो इंटरेस्ट रेट कम है लोन का, सो इजीली यू कैन गो फॉर डेब्ट बिकॉज यू हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिविडेंड चेंज होता रहता है, इस ईयर कितना प्रॉफिट है उसके ऊपर डिविडेंड डिफरेंट रहेगा, नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट है उसके ऊपर डिविडेंड रहेगा, बट इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है. इस साल आपने लोन लिया है तो लोन जब तक चुकाओगे तब तक वो रेट सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो रेट कम है तो लोन ही ले लो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द इक्विटी. एंड लास्ट वन, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिजनेस का कौन सा टाइप है, अदरवाइज यू कैन सी, अदरवाइज ऑब्जर्व द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज विद द सेम इंडस्ट्री. इसका मतलब क्या है, अदर कंपनीज मतलब आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री है और आप दूसरे मतलब सर्विस इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मैच बिकॉज उनका सर्विस इंडस्ट्री है, आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क विद द सेम इंडस्ट्री. सेम इंडस्ट्री मतलब आपके जैसा बिजनेस ओन कर रहा है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो चेक करो एंड गो स्टडी फॉर इट एंड गो फॉर द प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस. सो दैट इज ऑल्सो important factor while you are going to choose the capital structure for your business. So same industries में से capital structure क्या आता है, कैसा है, वो देख लो, choose कर लो, उसका study कर लो, then only go for the planning of your financial decisions. Okay, so these are the capital structure and which are the affecting on the choosing choice of capital structure. So it is a very important. I hope you got the clear concept about what are the factors affecting on choice of capital structure. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.